So in last lecture, we discussed continuity and different cases under which we discuss continuity. A function defined by one formula in the whole domain. We discussed how do we check continuity of such type of functions. Then we check continuity of graph of a function. And next we check then continuity of functions which are piecewise defined. Today we'll be discussing derivatives. There are usually two types of concepts in derivatives. One, finding derivative of a function, and the second one, checking differentiability of a function. If we recap, you must remember slope of a straight line, which we usually denote by m, that is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. That's the slope of a line when a line is passing through 2 points. Let's suppose one point x1 y1, the other point is x2 y2. The slope of this line, a line which passes through these 2 points, that is y2 minus y1 by x2 minus x1. If we link these things with the functions, if we take y is equal to f of x, where f of x is any function, and we take 2 points, one is x, which is our arbitrary point, and the other one is x naught, which is a fixed point. Corresponding y is taken as y equals f of x for x, and we take y naught when x is x naught. In that case, this relation or this slope becomes what? Replacing y2 with y1, sorry, y2 with y, so we get, in that case, slope is m is y minus y naught x minus x naught. What did we do? We simply replace y2 with y1 with y naught, sorry, y, and y1 with y naught. Similarly, x2 with x and x1 with x naught. It's just a replacement, keeping in mind. And then if you put the values of y and y naught there, this slope becomes what? This is f of x minus f of x naught divided by x minus x naught. Now, if you link this with the graph in the blue color, अगर आप यहाँ पर देख लें, तो एक हम ये वाला पॉइंट ले रहे हैं जिसको हम x naught कह रहे हैं,
दूसरा हम ये वाला पॉइंट ले रहे हैं जो कि हमारे पास x पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर x को लिखा गया है, वी कैन राइट दैट इज x नॉट प्लस h. x is taken as x naught, but doesn't matter, you can take x or x naught plus h. बाद में हम डिस्कस करेंगे x naught plus h का मतलब क्या होता है, ये कैसे बीच में आता है. तो एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, जो कि दोनों इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं. तो ये जो स्लोप है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये बेसिकली इस लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ब्लैक लाइन है. यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, दिस ब्लैक लाइन इसके स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड दिस ब्लैक लाइन इज बेसिकली अ सीकेंड लाइन. ये जो ब्लैक लाइन है ये क्या है, दिस इज सीकेंड लाइन. We can say that this slope is the slope of secant line. Now जब मैंने y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 लिया था, वो कोई भी लाइन जब दो पॉइंट्स पर से पास हो रहा हो उसका स्लोप था. जब हमने फंक्शन साथ में इंट्रोड्यूस कर दिया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और फिर हम दो पॉइंट्स उस कर्व के ऊपर ले रहे हैं, तो वो कर्व क्या बन जाता है, वो लाइन क्या बन जाता है जो उन दो पॉइंट्स पर से पास हो रहा है, वो सीकेंड लाइन होगा. तो ये जो हमारे पास है अभी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स नॉट, दिस रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन. लेकिन हम जैसे जैसे इसको क्लोज करते जाते हैं, अगर मैंने यहां पर पॉइंट लिया, ये x वाला पॉइंट, इफ दिस इज द x पॉइंट, तो करस्पॉन्डिंग जो कर्व पे पॉइंट आएगा वो यहां पे होगा. ठीक है, यहां पर ये होगा, और फिर हम यहां से ये लाइन दोबारा से ज्वाइन करते हैं, एक और लाइन लेते हैं सेकेंड लाइन, तो ऐसे बन जाता है. यू सी दिस वन. We take this line close to x naught, further close to x naught. यहां पे हमने लिया तो ये यहां पे आ जाएगा, और फिर हम यहां से लाइन ड्रा करेंगे, ये सेकेंड लाइन बन जाएगी. तो जैसे जैसे वी आर गेटिंग क्लोज टू एक्स नॉट, ये जो ब्लैक लाइन थी यहां पर, वो रेड लाइन बन जाती है यूं. और ये रेड लाइन जो है, दिस इज नोन एज टेंजेंट लाइन, बिकॉज ये रेड लाइन x इक्वल टू एक्स नॉट पे इस कर्व को टच कर रही है. ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है, रेड लाइन, ये इस कर्व को, ब्लू कर्व को या ग्राफ को यहां पे टच कर रही है. तो जब इस क्वांटिटी में ये जो हमारे पास है, इसमें अगर हम ये लिमिट अप्लाई कर लें कि x गोज टू x नॉट, so that basically represent what, that is then become slope of tangent line. ये इस लाइन का स्लोप बन जाएगा. फिर it becomes slope of this red line, and this is basically known as derivative of the function f dash at the point x is equal to x naught. But there is a restriction on it, that provided this limit exists, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा. अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो लिमिट ये
डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट वी से function is f of x is differentiable. Now you know from previous lecture that when does limit exist? Okay, you know that. हम उसकी तरफ अब जाएंगे कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा. Okay. So we say, as I said, f dash x, x naught, this exists if left hand limit exists, limit x goes to x naught from left side, बाकी फंक्शन वही रहेगा, f of x minus f of x naught divided by x minus x naught. हमने क्या किया, हमने यहां पर अब लेफ्ट हैंड लिमिट को इंट्रोड्यूस कर दिया. यू सी दैट, एंड दिस इज बेसिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसको हम डिनोट करते हैं एफ डैश, यहां बाहर आएगा, एंड दिस इज एक्स नॉट हियर. तो एफ डैश बार एक्स नॉट दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू एक्स नॉट फ्रॉम लेफ्ट साइड. दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, while a right hand derivative is the same. I am making changes here. You would simply replace this limit with plus, and then we say this limit exists, derivative exists if left hand derivative at that point is same as right hand derivative. अगर एक पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो और सेम है, तो वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा. अब हम तीन डिफरेंट केसेस अगेन डिस्कस करेंगे. एक, अगर हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट या राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं. That's a unit step, not unit step. Unit step is something different. यूनिट स्टेप का मतलब यह है कि हमने डिस्कस किया था, एक फंक्शन पूरे डोमेन में एक फार्मूला से डिफाइन हो जाए, लाइक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, y इक्वल एक्स एब्सोल्यूट है, वगैरह वगैरह. इस टाइप के फंक्शन को हम यूनिट स्टेप कहते हैं. सेकेंड फिर हम डिस्कस करेंगे अगर किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन है तो उसकी हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे. और थर्ड हम डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, इफ वी हैव पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, तो फिर उनकी हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे. तो आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस टुगेदर वन बाय वन, ठीक है. तो इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है, चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी, और एक होता है फाइंडिंग डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, जो कि आप ऑलरेडी एफएससी में कर चुके हैं, ठीक है. जैसे इफ इन दिस केस इफ यू वांट टू फाइंड डेरिवेटिव, तो यू नो दैट dy by dx इज इक्वल टू at the given point something x is equal to 1, let's suppose. तो ये हमारे पास x स्क्वायर के डेरिवेटिव, यू नो दैट 2x, और फिर x की जगह क्या पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इट.
to get answer that is equal to 2. यहाँ पर x की जगह आपने 1 पुट करना है और फिर आपके पास 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 2. तो डेरिवेटिव फाइंड हो गई यहाँ पे. लेकिन अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइंड करने होंगे. तो हाउ डू वी डिफाइन नाउ डेरिवेटिव्स, left hand derivative and right hand derivative in various cases. So we first consider y is equal to f of x when f of x is defined by single formula in the whole domain. Mean to say अगर ये unit step function है so in that case what do we do? Left hand derivative is can be found as f dash bar x naught, that is by originally definition that is x goes to x naught bar f of x minus f of x naught divided by x minus x naught and if you remove bar from here in case of unit step function, so we replace this limit with h goes to 0 and change x everywhere by x naught minus h. Minus f of x naught divided by replacing this x by x naught minus h as well. This is x naught minus h minus x naught. We cancel these together. Okay, so all together we are having, I can get rid of this as well from here. So left hand derivative is, you see, defined as replace x by x naught minus h everywhere in the function minus f of x naught divided by minus h. Okay? वहां पे जो था उसमें जो x naught प्लस h आया था या माइनस h आया था, तो हम इसमें एग्जैक्टली ये चीज कर रहे हैं. While for right hand derivative मैं यही पे चेंजेस कर लेता हूं. f dash plus x naught, this is plus limit here as I explained earlier. This is x naught plus h and we are having in that case x naught plus h minus x naught then, because you will be replacing x by x naught plus h everywhere and then cancelling these two together. I may remove this from here. Okay, so you see in case of right hand derivative what do we do? We are replacing x by x naught plus h and dividing by h then. This is how we find right hand derivative. Let me do an example तो आपको ये further पे clear हो जाएगा. Let's take the same function y is equal to our f of x is equal to x square, and we want to check its differentiability at x is equal to 1. From here, if you find first f of 1, x naught is 1 now, so f of 1 is 1 square which will be 1. Then finding left hand derivative f dash at 1 by that formula or by formula given in
left side, it will be limit h goes to 0 and replacing x everywhere by 1 plus h. It was, sorry, 1 minus h. It was x naught minus h, so x naught is 1, so it is 1 minus h. Minus f of x naught, so that is f of 1 divided by minus h. So limit h goes to 0, f of x is x square, so f of 1 minus h is 1 minus h square. F of 1, that is equal to 1 divided minus h. Now we can expand this square. One minus 2h plus h square minus 1 divided by minus h. Cancel these two together, and you may take minus h common in the numerator. So we get 2 minus h here divided by minus h. We can cancel these two, and then applying limit h goes to 0, so putting h equal to 0 there, that will simply give you 2. So left hand derivative in this case is what? That is 2. राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैं इसी में चेंज करने जा रहा हूँ, तो देख लें अगर कोई मसला नहीं है तो, या अगर स्नैपशॉट ले रहे हैं तो ले लें. राइट, फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव we take it f dash plus here. By formula, this will be 1 plus h, and we will get rid of this minus sign now because dividing by h. Get rid of this minus sign. Minus sign is there. We remove minus sign from here, and we remove minus sign from here. Oh, this will be 1 plus h square. This will be 1 plus 2h plus h square, and so on. This will be 2 plus h, taking h common out of it, and again you will get 2. So you see, in this case, left hand derivative is 2, right hand derivative is also 2. Both are same, so the function is differentiable at x equal to 2. It implies f is differentiable at x equal to 1, and derivative is what? That is 2, because f dash minus equals f dash plus, and that is equal to 2, so it is basically becomes now f dash. तो जब आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो आपने अकॉर्डिंगली दोनों स्टेप्स करने हैं. अपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, अपने राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है. जब सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आप वही जो रूल्स हैं उनको यूज करेंगे. लेट मी डू अनदर एग्जांपल. लेट्स सपोज f of x is equal to x absolute, and we want to check its differentiability at x is equal to 0. So again we would first find f of 0. F of 0 is 0 absolute, that is equal to 0.
Again we find left hand derivative. F dash power at 0, limit h goes to 0, we replace x by a minus h, yeah, x naught minus h, so that will be 0 minus h minus f of 0 divided by minus h. X naught in this case is what? That is 0. This is the limit h goes to 0. F of 0 minus h is minus h and function is absolute, so that is minus h absolute minus 0 because f of 0 is 0 divided by minus h. Keeping in mind that h will be greater than 0, very small but it must be greater than 0, जो हमने डिस्कस किया था पिछले लिमिट्स में. Now you must know that minus h absolute is same as h absolute. माइनस में यहाँ पे लिख लेता हूँ divided by h. This is equal to minus limit h goes to 0. H absolute is h when h is greater than 0. You must remember, h absolute is equal to h when h is greater than 0. It is minus h when h is less than 0. Okay, so we can cancel these two together, and from here you would have minus 1. This is h when h is greater than 0. This is minus h. बार हमारे पास तो पहला यूज होगा बिकॉज h हमारे पास हमेशा के लिमिट्स में हम क्या ले रहे हैं? ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं. तो जब h ग्रेटर देन 0 होगा तो h एब्सोल्यूट विल बी टेकन एज प्लस h. तो इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है f ऑफ x इक्वल टू x एब्सोल्यूट एट x इक्वल टू 0, दैट इज माइनस 1. एंड इफ यू फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव, मैं इसी में अमेंडमेंट कर रहा हूं अभी. This is plus, this is plus, and obviously we'll get rid of this minus sign. We get rid of this minus sign. Forget about this one, forget about this one, forget about this one. This will be also plus then. That is h absolute, बाकी सेम रहेगा और लिमिट आपके पास क्या आ जाएगा? फिर इसका 1 आ जाएगा. तो इसकी जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या है? वो प्लस 1 है. तो वी कैन से द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज एट x इक्वल टू 0, that is minus 1, which is not equal to plus 1, and plus 1 is what? That is f dash plus 0. Therefore, we would say in this case, f is not differentiable. At x equal to 0. x equal to 0 पे ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है. एक्सक्यूज मी सर. यस सर ये Yeah. Faisal, I don't hear. हेलो. बोलें.
सर ये जब मैंने कहा सर ये एब्सोल्यूट एच माइनस एच के इक्वल कैसे आएगा? आपने कहा कि अगर एच लेस देन जीरो तो माइनस एच के इक्वल आएगा। ये आई डोंट नो, हमारे स्टूडेंट की ये कंफ्यूजन अभी तक नहीं जा रही है। दे आर काफी बड़े हो गए हैं आप लोग। देखें, आपके जहन में तो बात वही है कि एच एब्सोल्यूट जो है वो, यू कैन टर्न ऑफ माइक, माइक ओके बंद सर। करें। ओके, आपके जहन में तो यह है कि एच एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस एच कैसे हो सकता है? दैट्स व्हाट यू थिंक। लेकिन जहन में रहे एच एब्सोल्यूट इज ऑब्वियसली ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम कह रहे हैं ये एच होता है जब एच पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। द आंसर इज नो, एंड दिस इज माइनस एच व्हेन एच इज नेगेटिव। तो इसी जब एच नेगेटिव है तो व्हाट अबाउट माइनस एच? माइनस एच पॉजिटिव होता है, माइनस एच हमेशा के लिए नेगेटिव नहीं है, right? Negative of a number is not always negative, it can be positive as well. -4 है, -4 का माइनस लोगे तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। तो इट इज ओके दैट हम जब कहते हैं कि h एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस एच, लेकिन वहां पे रिस्ट्रिक्शन आ गई कि h क्या है? नेगेटिव है, तो माइनस एच ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। तो इन दिस केस ये तो है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाता है, दैट्स व्हाई h एब्सोल्यूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके सर, आई हैव गॉट इट। या तो इस प्रकार हम थोड़ा सा ज्योमेट्री से रिलेट कर लें। अगर आपको ग्राफ पता हो एक्स एब्सोल्यूट का, ये वी शेप बनता है ऐसे, और इसमें जीरो पे कॉर्नर आ जाता है, ठीक है? यहाँ पे कॉर्नर है एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इसके लेफ्ट साइड को देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे ये लाइन है, और इस लाइन का स्लोप आता है, ये लाइन कौन सा है? दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स। सी दैट y इज इक्वल टू माइनस एक्स जब x लेस देन जीरो हो। तो इसका स्लोप क्या है y इज इक्वल टू माइनस एक्स का? -1 है। राइट साइड पे जो फंक्शन बन रहा है वो y इज इक्वल टू एक्स है, और y इज इक्वल टू एक्स का जो स्लोप है वो +1 है। तो इसी जब हम एग्जैक्टली इस पॉइंट पे खड़े होते हैं तो लेफ्ट पे मुझे उसका स्लोप -1 नजर आ रहा है, राइट पे मुझे उसका स्लोप +1 नजर आ रहा है। तो आई कैन नॉट डिसाइड दैट एट दिस पॉइंट व्हाट वुड बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। एक बात। सेकेंडली, यहाँ पर टेंजेंट लाइन यूनिक नहीं होता, इधर से आप कर सकते हैं, इधर से आप कर सकते हैं, ये सारे एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर यूनिकनेस नहीं है टेंजेंट लाइन की, इसलिए हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। जब किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है दैट मस्ट बी यूनिक, एक से ज्यादा नहीं ड्रा कर सकते, एक ही लाइन ड्रा होगी वहां पे। ऐसा नहीं कि एक तरफ जा रहा है, दूसरा दूसरी तरफ जा रहा है। अगर इस तरह से सिचुएशन है, किसी पॉइंट पे आपके पास एक से ज्यादा टेंजेंट लाइन बन सकते हैं, तो उस केस में हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पे तो आपको चेक करने की जरूरत ऑब्वियसली होगी, क्योंकि आपको एफ ऑफ, देखिए ना, आप एफ ऑफ जीरो फाइंड कर रहे हो ना। अब इसके बाद मैं आ रहा हूँ, इस चीज को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हमने डिफरेंट कंटिन्यूटी की बात की थी, तो कंटिन्यूटी के लिए ऑब्वियसली डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी का होना जरूरी है। उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ अभी, ठीक है? पहले उस जिस पॉइंट पे हम चेक करें वहां पे कंटिन्यूस होना जरूरी है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ी देर में। ओके, तो यहां पर आपके पास क्या है? ये राइट, तो यहां पर ये फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास अगर यूनिट स्टेप फंक्शन है तो हम उसकी डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अब आते हैं ग्राफ की तरफ। अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन है तो हाउ वुड यू नो कि ये किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है? तो इससे पहले आप कुछ चीजें ध्यान में रख लें। पहली बात यह है कि डिफरेंशिएबिलिटी जो है दैट इंप्लाइज कंटिन्यूटी। मतलब अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो लाजिम बात है कि कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है? वाइल
कंटिन्यूटी, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है, जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। कंटिन्यूटी डजंट अप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं, ये क्या हमारे किसी काम के हैं? तो द आंसर इज नो, हमारे किसी काम के नहीं है। बिकॉज कंटिन्यूटी चेक करना आसान है एज कंपेयर टू डिफरेंशिएबिलिटी। बिकॉज यहाँ पर सिंपल हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट फाइंड करते हैं। वी फाइंड एल एल एंड आर एल and we check whether they are equal or not. If equal तो continuous है, अगर not equal तो not continuous। डिफरेंशिएबिलिटी में भी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे, जिसमें काफी लंबी चीजें हो जाती हैं। You would find left hand derivative and right hand derivative। तो इट्स नॉट अ क्लेवर थिंग कि आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं और आप उसके लिए पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें। तो कोई ऐसे मतलब ये होशियारी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे किसी काम का नहीं, ठीक है, ये रूल है लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। जबकि यहां पर अगर मैं पहले कंटिन्यूटी चेक करूं और फंक्शन कंटिन्यूस है, तो मुझे फिर भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, फिर ये आसान होता, फिर हमारे यूज का होता, मेरे काम का होता। लेकिन इस केस में हमारे काम का नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी जो है वो वैसे भी इट मे और मे नॉट इम्प्लाई कि वो डिफरेंशिएबल है। लेकिन यहां से हमारे पास एक और स्टेटमेंट आ जाती है, और वो है कि नॉन डिसकंटिन्यूटी implies non differentiability। अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, तो वो फिर क्या होगा? वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब ये हमारे काम की चीज है, ये बेसिकली वो चीज है जो हमें फायदा देगी। क्या करेंगे? आप सबसे पहले फंक्शन को चेक करोगे क्या वो कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, इफ इट इज डिसकंटिन्यूस, आप डायरेक्ट कंक्लूड कर दें कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको फिर डिफरेंशिएबल चेक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप सबसे पहले हमेशा के लिए चेक करोगे कि फंक्शन क्या कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, तो वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट इसी थ्योरम का या इसी स्टेटमेंट का हवाला दे देंगे, क्योंकि भाई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या है? अब देखें, लिमिट और वैल्यू का सेम होना जरूरी है और वैल्यू का एग्जिस्ट होना भी जरूरी है। तो ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी वही चीज हो गई है। तो आपको जो सवाल था वो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई yes we have to check it must be, because डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी का होना जरूरी है। हाँ, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, इफ इट इज कंटिन्यूस, तो फिर हम कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते। उस केस में फिर आप चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी को। बहुत स्टूडेंट ये मिस्टेक कर जाते हैं, वो कहते हैं आपने कहा था कि अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरा हमने खुद से बना लिया कि अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो ठीक है, आप डायरेक्ट लिख दें डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अगर वो कंटिन्यूस निकला तो फिर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, फिर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे, आप राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे, और आप देखेंगे दोनों सेम है कि नहीं है। अगर दोनों सेम है तो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। अगर दोनों डिफरेंट है तो कंटिन्यूस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहां से अब हम ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। उसके में सर जी सर एग्जांपल 1 में हमने डिस्कस किया एफ ऑफ एक्स नॉट वाज 1 और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सर वो 2 आ रहा था।
तो फिर आपने कहा कि दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 2 नहीं आ रहा था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आ रहा था। एक अच्छा फंक्शन की वैल्यू है और एक डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव और फंक्शन का वैल्यू सेम होना जरूरी नहीं है। ओके कंटिन्यूटी में जिस तरह से लिमिट और वैल्यू का सेम होना जरूरी है, डिफरेंशियबिलिटी के लिए सेम होना जरूरी नहीं है। वो ओके तो सर डेरिवेटिव्स है ना, वो तो फंक्शन की वैल्यू या लिमिट तो नहीं है। ओके सर तो उसका थैंक यू उससे ताल्लुक नहीं है, आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। कंटिन्यूटी में उसका ताल्लुक है, कंटिन्यूटी में फंक्शन की वैल्यू और लिमिट का सेम होना जरूरी है। यहाँ पे भी हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिट हम फंक्शन का नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम लिमिट एक स्पेसिफिक फंक्शन का फाइंड कर रहे हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। वो एफ ऑफ एक्स की का लिमिट नहीं है। अगर उस एग्जांपल में आप एफ ऑफ एक्स का लिमिट फाइंड करोगे तो वो 1 आएगा। लिमिट एक्स गोज टू 1, एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 ही आएगा। लेकिन डेरिवेटिव के लिए क्या आ रहा है, डेरिवेटिव के लिए 1 जरूरी नहीं है, वो कुछ भी आ सकता है। हाँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों से सेम आना जरूरी है। ओके सर राइट। अब आते हैं जरा ग्राफ की तरफ कि अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ पता हो तो हमें डिफरेंशियबिलिटी कैसे पता चलेगी। वी कंसिडर द सेकंड केस, दैट इज द ग्राफ केस। ओके, तो पहली बात हमें क्लियर है कि अगर किसी पॉइंट पे जंप है ग्राफ में, तो उस पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था कि वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वहां पे फंक्शन क्या होगा, न तो कंटिन्यूअस होगा, वो तुम्हें पता है जंप के लिए, और न ही डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे जहां पे हमारे पास क्या है, जंप है, if we are having a jump discontinuity, in that case the function is non differentiable। अगर ग्राफ में कहीं पे होल है, जैसे भी हो, लेट सपोज अगर इस तरह से होल है या यहां पे इसको डिफाइन किया गया है, सपोज करें ऊपर डिफाइन किया गया है, हमारे पास केस ऐसे होते हैं, तो इस पॉइंट पे भी फंक्शन न कंटिन्यूस है और ना ही डिफरेंशिएबल है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यू सी दैट इन दिस केस वी आर हैविंग होल। अगर ग्राफ में किसी पॉइंट पे कॉर्नर है, कॉर्नर बेसिकली शार्प टर्न होता है, ठीक है, ये कॉर्नर है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये एरो ग्राफ का पार्ट नहीं है, ऐसा ना कि आपका इधर ग्राफ बन रहा है, ग्राफ वही है, यहां से यहाँ पे शार्प टर्न। इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस तो होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता। रीजन वही है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिमिट है, राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, बिकॉज एक ही पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट साइड पे स्लोप ऑफ द लाइन, राइट साइड पे स्लोप ऑफ द लाइन बराबर नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर किसी पॉइंट पे कस्प हो, यहां पर इसको हम कस्प बोलते हैं, तो यहां पे क्या है, यहां पे भी कंटिन्यूटी तो है लेकिन अगेन डिफरेंशियबिलिटी नहीं है। वेयर एज अगर इस तरह कोई कर्व बन रहा है जिसमें न होल है, न जंप है, न कॉर्नर है और न ही कस्प है, तो यहां पर ये कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तब जब किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन और आप उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो चेक करो क्या उसमें होल है, डिसकंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, क्या उसमें जंप है, डिसकंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, क्या उसमें कॉर्नर है, कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, कस्प है तो वो क्या है, कंटिन्यूस तो है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है। और अगर ये ना हो तो फिर वो कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। Okay, I hope it's clear.
अब आते हैं हम जो थर्ड केस है, अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। If that is piecewise defined function, you know, it will be defined for uh, differently in one interval and different in the other interval. तो पहले हम इसकी जनरल सेटअप लिखते हैं कि रूल क्या है उसके लिए। You know that f dash minus at a point x naught by basic our original definition, that was x goes to x naught from left side, f of x minus f of x naught divided by x minus x naught। ये तो बेसिक डेफिनेशन हुआ। इसमें हम क्या कर, जब इस बार को हटाएंगे कंप्यूटेशन के लिए, तो वी टेक x गोज टू x नॉट f of x minus f of x naught divided by x minus x naught, but we immediately impose a restriction or condition on it that x will be less than x naught। मतलब जो फंक्शन x लेस देन x नॉट के लिए डिफाइंड होगा, f ऑफ x की जगह आपने वो फार्मूला यूज करना है। बाकी कहानी सेम है। अगर हमें राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए तो यहाँ पे प्लस करो, ये प्लस आएगा, और जैसे हम प्लस हटाएंगे ये सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम कंडीशन चेंज करेंगे और लिख लेंगे भाई x इज ग्रेटर देन x नॉट। देन तो लेफ्ट और राइट में सिर्फ इस पॉइंट पे फर्क पड़ेगा, इस कंडीशन पे फर्क पड़ेगा कि भाई एफ ऑफ एक्स हम यूज करेंगे वो वाला, लेफ्ट के लिए एक्स एक्स लेस देन एक्स नॉट होगा और राइट के लिए एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट होगा। लेट्स डू एन एग्जांपल, आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज f of x is defined as, let's suppose आप कोई भी ले सकते हो, x square, let's suppose this is x square when x is comma है, when x is less than or equal to 0, and this is x when x is greater than 0। अब पहला स्टेप जिससे मैंने कहा कि आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होगी अगर हम चेक करना चाह रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। फॉर x लेस देन 0 ये पॉलिनोमियल है, फॉर x ग्रेटर देन 0 पॉलिनोमियल है। जिस तरह मैंने कहा था कि पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होते हैं इन देयर डोमेन, इसी तरीके से पॉलिनोमियल आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन एज वेल। They are differentiable in their domain, जितना भी डोमेन आपको दिया हो उसमें। अब जैसा एक्स स्क्वायर गिवन है फॉर एक्स लेस देन 0, इक्वल टू 0 पे मसला आ रहा है तो हम इक्वल टू 0 कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम लेस देन 0 की बात कर रहे हैं और ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे। तो हमने x इक्वल टू 0 पे पहले चेक करना है क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो कंटिन्यूस के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने इसी फार्मूले को यूज करना है। तो एल एल अगर हम यहां पर x को 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0, while for right hand limit at that point आपने फिर ये फंक्शन यूज करना है एंड दैट इज 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, ठीक है, एंड व्हाट इज एफ ऑफ 0?
वो भी ज़ीरो ही है, बिकॉज यू सी यहाँ पर ज़ीरो शामिल है इसमें, तो हमने ये फार्मूला यूज करना है। तो इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, दैट फॉर श्योर। नाउ वी वुड चेक कंटिन्यूटी, सॉरी डिफरेंशियबिलिटी। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्टली यहां से कंक्लूड करेंगे भाई कंटिन्यूस हो गया तो डिफरेंशियबल भी होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। It is continuous, so you would check differentiability here. Now, how do we do that? We find f dash minus at x equal to 0. By definition, this is limit x goes to 0. अभी जो मैंने explain किया, this is f of x minus f of 0 divided by x minus 0 with x condition applied is less than 0. And for x less than 0, you see the function is defined as x square. So we can take limit x goes to 0. F of x is x square for x less than 0. F of 0 is 0 divided by x minus 0 is x. If we simplify this and then applying limit, it will be 0. So left hand derivative of this function is what? That is 0. While for right hand derivative, what do we do? Keeping in mind that f dash 0 is 0 for left hand derivative. We make it plus, and this condition will be replaced simply with the greater than 0 then. Okay, and you know for greater than 0, f of x is what? That is x when x is greater than 0. And then we cancel these two together, तो ये 1 आ जाएगा, और फिर जब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 से 1 ही आ जाता है। तो you see that इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था that was 0, which is not equal to 1, and that is right hand derivative. So this function is not differentiable at x equal to 0. कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशियबल नहीं है, तो हम सिंपली लगा रहा हूँ d और क्रॉस लगाऊंगा, तो आई वुड मीन दैट दिस फंक्शन इज नॉट differentiable at this point. Is it clear? अब मैं जा रहा हूँ उस प्रेजेंटेशन की तरफ जहाँ पे तकरीबन सारे बातें मैंने डिस्कस कर ली एडवांस में, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। ये डिस्कस हो गया ऑलरेडी, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का। यहाँ पे यू सी दैट लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं और राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, h प्लस एंड h माइनस ले रहे हैं। ये एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये वो रूल्स हैं जो मैंने बता दी आपको। You see that? I'm giving you 1 minute and check it. ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन कर ली हैं। यहाँ पे एक साथ में है, वहाँ पे मैंने पहले यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए एक्सप्लेन किया, फिर एग्जांपल दिया, बल्कि 2 एग्जांपल दिए, एंड देन एक्सप्लेन फॉर पीस वाइज डिफाइंड और एग्जांपल दे दिया।
right? And then if the condition, if left hand limit, left hand derivative is equal to right hand derivative, we say the function is differentiable. ये हमने सारे एग्जांपल्स में बात की थी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव बराबर हैं, तो ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, इनमें बराबर नहीं है वो डिफरेंशिएबल नहीं होते. ओके जी, एक्सरसाइज 3.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है 37, उससे पहले क्वेश्चन है वो काफ़ी सिंपल हैं और कहीं पे भी इनिशियल मेथड है और कभी कुछ है वो आप लोग जानते हैं. आप लोग अगर आप बुक में देखेंगे तो 14th एडिशन बुक में है, थॉमस फिनी का बुक है. अगर आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में नहीं है तो मैंने क्लास पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. उसमें शायद आपसे परमिशन मांगी बिकॉज वो गूगल ड्राइव में पड़ा हुआ है, तो यू कैन सेंड मी एन ईमेल टू गिव यू परमिशन. Anyone want to ask a question? Okay, so if you see question number 37, graph is given and it say show that the function is not differentiable at the given point. Okay, the 37 number, if you see, you will first define function from the graph, which is in this case for x less than 0, you see the graph is the function is given, that is x squared, while for x greater than 0 it is x. Is it not exactly the same example I explained or solved a bit earlier? It is, obviously. मैंने वहां पे फंक्शन लिया था f of x is equal to x square for x less than or equal to 0 and it is x for x greater than 0. और फिर हमने चेक किया था कि 0 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे. 38 में फॉर x लेस देन 1 f of x is 2, while for x greater than 1 it is 2x. Geometrically, you can see that there is a corner at x equal to 1, so it is obviously non-differentiable, but it is continuous. You don't need to check continuity here. आप पहले फंक्शन को डिफाइन करें यहां से, और फिर इसके बाद आप चेक करें उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को, जैसे मैंने कर लिया. ओके, गिव मी 1 minute प्लीज.
Okay, let me take first attendance here. Okay, that's done. Right, let's move back to that those functions again. And in 39, in question 39, okay, sorry. Question 39, if you see, f of x is equal to under root x when x is less than 1, and it is 2x minus 1 when x is greater than 1. And it's obviously continuous at the given point. You will check differentiability as I have done in that example. In question 40, f of x is equal to x for x less than 1. And it is 1 over x for x greater than 1. ये जो इक्वलिटी है आप किस में भी शामिल कर सकते हैं, x लेस देन आर इक्वल टू 1 कर रहे हैं या x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 कर रहे हैं, आपकी मर्जी है. जी बताएं, इनमें से कोई करवाना चाहते हैं मुझसे या कर लेंगे आप? Are you there? Which one? That's what I'm saying. 39 sir. ये आप लोगों का शेयर नहीं है? जी क्या बात है. ये मैंने मेन कैंपस में 7 में पढ़ाया तो उसमें भी वही सबने कहा 39 सवाल करवा दें. आप भी सारे गए 39 करवा दें. आई डोंट नो आप लोग क्या मसला 39 में. हमारे स्टूडेंट्स यूजुअली स्क्वायर रूट से बहुत ज़्यादा डरते हैं, एक्सपोनेंशियल से डरते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं. ओके, लेट मी डू 39. ओके, असल मैं भी थोड़ा सा रुक के पढ़ा रहा था क्योंकि मैं साथ साथ में नाश्ता भी कर रहा था. अब मैं फारिग हो गया हूँ. आपको भी कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा. ओके, तो इन क्वेश्चन 39 you see f of x is under root x for x less than 1. It is 2x minus 1 for x greater than 1. So let's move to the board. So I would define first function f of x is equal to that is under root x when x is less than or equal to 1 or maybe less than 1, is up to you. और दूसरा जो है यहाँ पे फिर आप इक्वलिटी शामिल कर सकते हैं. It is 2x minus 1 when x is greater than 1.
इक्वलिटी आप किसी भी शामिल कर सकते हैं बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस. अब यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं कंटिन्यूटी बिकॉज ऑलरेडी वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस. So what is f of 1? You would first find f of 1 because in the formula you'll be using that. It is, you can use this one or this one, you get 1 from either one. Now we find f left hand derivative, f dash bar at x equal to 1. That is limit x goes to 1. F of x minus f of 1. Divided by x minus 1 with condition that x is less than 1. And for x less than 1, f of x is defined as under root x. F of 1 is 1 divided by x minus 1. Now if you put directly limit x goes to 1, you are getting 0 by 0 here. So what do? We are multiplying and dividing by under root x plus 1 we multiply it by under root x plus 1 and divide by the same thing. So we get x minus 1 and under root x plus 1. I hope it is clear to you. Now under root x minus 1, under root x plus 1 give you x minus 1. So all these together can cancel with this one. A minus b into a plus b is a square minus b square will give you simply x minus 1. And then applying limit x goes to 1 here, that will become 1 by 2. So left hand derivative of this function is what? That is 1 by 2. Whereas right hand derivative, if you find here, that is limit x goes to 1, f of x minus f of 1 divided by x minus 1 with the condition, बाकी सेम रहता है, सिर्फ कंडीशन चेंज हो जाएगा और वो x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. और x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है? That is 2x minus 1. So we write 2x minus 1 for f of x. f of 1 सेम रहेगा जो आपने यहाँ से फाइंड किया हुआ है, it is minus 1 divided by x minus 1. अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x minus 2 हो जाएगा और then we can take 2 common out of it, so we get x goes to 1, 2 into x minus 1 by x minus 1. And then applying limit x goes to 1 will give you 2. So a left hand derivative is 1 by 2 while right hand derivative is 2. You could simply say that f dash minus is not equal to f dash plus, so the function is not differentiable. It is not differentiable. Clear? That's the way you will check. बाकी जो remaining functions हैं आप ऐसे ही check करोगे उनको भी. Okay. तो ये चीज आपने करना है यहाँ पर. इस केस में अगर आप देखेंगे ये वाला जो फंक्शन है फर्स्ट 141, you would check first continuity. This function is not continuous because for right hand limit you would use this formula 2x minus 1. If you put x equal to 0 here, you get minus 1. So left hand limit is minus 1 while right hand limit will be right hand limit is minus 1, sorry, and left hand limit you would use this formula.
तो put x equal to 0 here, 0 plus 7. Left hand limit is -1, the right hand limit is +7. The function is discontinuous. Therefore डायरेक्टली आप कह देंगे ये नॉन डिफरेंशिएबल भी है. इसको फिर आप डिफरेंशिएबल चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कंटिन्यूस ही नहीं है. तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस ना हो तो उसको आप वहीं पे रिस्पॉन्ड कर लिया करें. अदरवाइज बाज़ औक़ात इश्यूज आते हैं, यू मे फाइंड यूर सेल्फ इन ट्रबल. आप बगैर कंटिन्यूटी के जाएं डिफरेंशिएबिलिटी पे. देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप कहीं पे अटक जाएंगे और फिर आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं. ठीक है, तो यू मस्ट चेक डिफरेंशिएबल कंटिन्यूटी फर्स्ट. ये ठीक है, ये कंटिन्यूस है, बिकॉज अगर हम 0 इधर पुट करें तो भी 0 आता है, हम 0 इधर पुट करें तो भी 0 आता है, और यहाँ पर इक्वलिटी भी है. तो ये डिफरेंस कंटिन्यूस है, तो यू वुड चेक डिफरेंशिएबिलिटी. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये फंक्शन यूज करो, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये फंक्शन यूज करो और चेक करो क्या हो रहा है. ये भी कंटिन्यूस है तो चेक करो डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी कंटिन्यूस है तो चेक करो डिफरेंशिएबिलिटी. ऐसी है जो भी मैंने दोनों एग्जांपल कर दिए. एक क्वेश्चन किया, एक एग्जांपल कर दिया. ओके, इनमें बता रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं बल्कि कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल है. ग्राफ दिए हुए हैं, तो जब मैंने ग्राफ बता दिया आप वही कंसेप्ट यूज करोगे. तो जहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, तो जहाँ पे जंप और होल नहीं है वहां पे डिफरेंशिएबल है. कहाँ पे कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, जहां पे कॉर्नर है या कस्प है वहां पे कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है. जैसे क्वेश्चन नंबर 48 में -1 पे कॉर्नर है, तो ये यहाँ पे कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है. while in 49 there is a cusp at x equal to 0, तो ये यहाँ पे कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है. 50 में -2 और 2 पे क्या है, कॉर्नर्स हैं, तो यहाँ पर भी ये कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है. और कह रहे हैं पार्ट सी में नीदर कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल, तो जहाँ पे होल है या जंप है, जैसे कि 47 में 0 पे है, इन 48 एट 0 and 2 एंड दैट्स इट. तो यहाँ पर ये ना कंटिन्यूस है और ना डिफरेंशिएबल है. मेरे ख्याल में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था इसको. अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 की बात अब हो रही है. ये 3.1 था. 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 50 तक अगर आप बुक देखें वही, तो उसमें ये प्रोडक्ट रूल का है, सम रूल है, क्वोशिएंट रूल है, इस पे क्वेश्चंस हैं. आपने ऑलरेडी में एफएससी में किए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में आपको इतना इशू नहीं होगा. You should just check it. करने की जरूरत नहीं, इस पे इतना टाइम वेस्ट ना करें. Just check it and see if you have any problem with it. अगर प्रॉब्लम है तो 2-3 एग्जांपल्स पीछे देख लें और उसको कर लें फिर. ठीक है. In question 57 and 8, they are saying find the values of a in 57 such that the function is differentiable दिया. तो जिस तरह हमने कंटिन्यूटी के लिए किया था वैसे हमारे पास अब ये डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी है. So let me do that. Okay, so we first consider 57. We would make this function continuous everywhere and then we would find the value of a in this case. तो अगर हम यहाँ पे अगेन कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो कंटिन्यूस ये फंक्शन है. For x less than 0 value is 0, for x greater than 0 value is 0, and for x is equal to 0 is also value 0. तो तीनों वैल्यू सेम आ रही है. इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन क्या है, दिस इज कंटिन्यूस. तो इसका मतलब है हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी अब. ओके, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. उसके लिए पहले आप f(0) फाइंड करो. तो f(0) के लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये नीचे वाला, बिकॉज इक्वलिटी यहाँ पे शामिल है. तो दैट इज 0 minus 0 which is equal to 0. So f(0) is 0 which is given. Now we find left hand derivative. At x equal to 0, by definition this is limit x goes to 0 f of x minus f(0) divided by x minus 0. कंडीशन इम्पोज करोगे कि x is less than 0, and for x less than 0, you know f of x is what, that is ax. Ax minus 0 divided by x.
You may cancel these two together, and then you apply limit x goes to 0, which is equal to a. तो इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या है, वो प्लस ए हो जाएगा, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव that will be limit x goes to 0 f of x minus f of a 0 divided by x minus 0 with condition x is greater than 0. X goes to 0. F of x for x greater than 0 is defined as x square minus 3x. F of 0 is 0 divided by x. इधर से x कॉमन निकालें, x कैंसिल करें, आपके पास -3 आ जाएगा. ठीक है, तो we want this function to be continuous, sorry, differentiable. So f dash minus should be same as f dash plus. जिस तरह हमने कंटिन्यूटी के केस में we wanted to make function continuous everywhere, तो हमने वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट को सेम किया था राइट हैंड लिमिट के. यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को सेम करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज फाउंड एज a while right hand derivative is found as -3. So a should be -3 to make a function differentiable at that point. So this function will be differentiable everywhere if a is equal to -3. और अगर a -3 के बराबर ना हो तो हर जगह पे डिफरेंशिएबल होगा सिवाय 0 पे. For other value of a, the function will not be differentiable at x equal to 0 because left hand derivative और right hand derivative दोनों बराबर नहीं होंगे. I hope it is clear. Let's do second question as well. मैं इसके हिंट्स दे रहा हूं, बाकी पर आप ऐसे ही करेंगे. जैसे मैंने अभी कर लिया है. ठीक है, मैं सिर्फ हिंट्स दे रहा हूं, बाकी पर आप खुद करें. Okay, you would check first continuity. In this case, we need to find value of a and b both. तो हमें पहले कंटिन्यूटी चेक करना है. उसके लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करो. यू नो हाउ टू फाइंड इट, हमने ऑलरेडी कंटिन्यूटी में किया हुआ है, तो आप एग्जैक्टली वही स्टेप्स करेंगे जो वहां पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं. तो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट वी विल बी यूजिंग दिस फंक्शन x less than -1. So it is bx square minus 3. You would put x equal to -1 there to get b minus 3. So left hand limit in this case is what? b minus 3. And for right hand limit, you would use this formula for x less than greater than -1, which is ax plus b. Put x equal to -1 in this formula, we get minus a plus b. Right? And then for continuity, we want these two to be equal. So this implies, because we want the function to be continuous as well, so it is minus a plus b should be same as b minus 3. Cancelling these together, from here you would find a is equal to 3. ए क्या होना चाहिए? ए 3 होना जरूरी है. अब देखिए कंटिन्यूटी चेक करना जरूरी है. पिछले केस में हमने चेक किया कंटिन्यूस था, तो उसमें तो ये करने की जरूरत ही कोई नहीं थी.
अब मसला आ रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एक है, राइट हैंड लिमिट पर दूसरा होगा। अगर हम ए को चेंज करेंगे या बी को चेंज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि a इज इक्वल टू 3। तो अगर a 3 है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और फिर हम चाहेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ। अभी जो मैंने क्वेश्चन 57 में किया तो यू विल एग्जैक्टली डू द सेम थिंग। तो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी you would find left hand derivative and right hand derivative। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अगेन जहन में रहे, आपने ऐसे ही करना है जैसे मैंने क्वेश्चन 57 में किया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड आई फाइंड इट, I can do it directly, that will be minus 2b। okay, I will use this function in the rule or in the formula, और फिर इसके बाद वो फैक्टराइजेशन वगैरह होगी, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। इसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगी? राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे जो इस साइड पे है, एंड दैट विल सिंपली गिव यू a when you find it is derivative। and we want these two to be equal because we want this function to be differentiable everywhere, so we want minus 2b to be same as a। और a किसके बराबर है? 3 के बराबर है। so minus 2b is equal to 3, which implies b is equal to minus 3 by 2। So if a is 3 and b is minus 3 by 2, this function will be differentiable everywhere, and obviously continuous bhi hoga because differentiability implies continuity। I hope it is clear। okay, any question? There are 9 comments, I'm sorry I didn't share। please off the subtitle, there are no subtitles। अहमद हुसैन क्या मसला है? सर मेरे साथ आ रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं सर वो उसके सबटाइटल्स आ रहे हैं, बाकी से पूछ ले, या शायद मेरे साथ कुछ मसला हो। नो, मैंने टर्न ऑफ किया है, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे रहा हूँ, तो फिर कैसे आपको आ रहे हैं? आपने टर्न ऑन किया सर होगा। मैं भी जो कैप्शन ऑप्शन ऑफ करें। ये जो सीसी है उस पर क्लिक करें सर, ये अहमद, तो फिर बंद हो जाएगा। सर हमारे साथ नहीं आ रहा है सर, इसको कैप्शन ऑफ करना नहीं चाहिए। मैंने नहीं ऑन किया हुआ है ना, तो वो कैसे आ सकते हैं उनको ना? सर अहमद उसने हुसैन खुद- के साथ मसला है। उसने खुद ऑन किए होंगे। हाँ खुद आन दिए। यस सर। यस सर। इसलिए मैंने ऑन नहीं, क्योंकि मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, तो उर्दू में फिर वो अजीब व गरीब लिख रहा होता है, उसको प्रॉपर्ली वो डिटेक्ट नहीं कर पाता ना, तो क्योंकि लैंग्वेज इशू होता है, तो इसलिए मैं डिटेक्ट नहीं, इसको मैं ऑन नहीं करता हूँ। जी कोई ठीक है सवाल? सर, ये मेरा प्रॉब्लम है। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। जी, any question by anyone? Because I'm moving towards a new topic then। एक चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल थी, बिकॉज इसमें आपको डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करना था, आगे फिर इतना वो फिलहाल कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है इसमें, तो लेट मी डू दैट a bit quickly। That we consider derivative as a rate of change। You know that from physics or from mechanics that rate of change of displacement is velocity, and rate of change of velocity is acceleration, and rate of change of acceleration is jerk। So that's what we say, that you can simply say derivative of displacement is velocity, derivative of velocity is acceleration, and derivative of acceleration is jerk, right?
So if you are given a position of a body is defined by s is equal to f of t, and you want to find its velocity, so what would you do? You would simply differentiate that function with respect to t to get a velocity, and then magnitude of velocity that give you speed, right? And then if you find dv by dt are double derivative of position of a particle at any time, that give you acceleration of the particle of the body at that time. And if you find derivative of acceleration, that is known as jerk. Okay, or if you find third order derivative of displacement or second order derivative of velocity, that give you jerk. तो ये कुछ चीजें बहुत important simple सी चीजें आपको पता है. Let's do an example. A dynamite blast blows a heavy rock straight up with a launch velocity of 160 feet per second. It reaches a height of s equal to 160 t minus 116 t square feet after t seconds. That's basically measure the position of rock at any time. If you put t equal to 1, that will be the position of rock at after 1 second. If you put t equal to 2, 3, 4, 5, and so on, accordingly you will get position of the rock at a specific time. Now in part A, they are asking how high does the rock go? So you must know that at the maximum point or at the highest point, velocity should be 0. ठीक है, तो हम पहले वो टाइम फाइंड करते हैं जिस टाइम में वो अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, और फिर वो टाइम हम s में पुट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, we will get maximum height. Okay, so how high does the rock go? For that you would find first velocity which is ds by dt. You differentiate this function here, that will be 160 minus 32t. You see that we're correct, and then you would equate that to 0. ठीक है, इसको इक्वल करेंगे 0 के, क्यों? Because at the peak point or the highest point, velocity must be 0. So you will take v equal to 0 and then find time t. So 160 minus 32 t is equal to 0 implies t is equal to something 5, yeah. So t is equal to 5 seconds. यानी 5 सेकंड में ये जो रॉक होगा वो अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका होगा. ये टाइम आ गया. अब हाइट कितना होगा, ये t इक्वल टू 5s में पुट करें, जो s दिया हुआ है ना उसमें पुट करें. That is 160 multiplied by 5 minus 16 into 5 square. क्या करेगा? And then we put t equal to 5 in this formula, 160t minus 16t square, to get the maximum height. If you see in the next slide, it is 400 feet. The maximum height will be 400 feet. In second part, say what are the velocity and speed of the rock when it is 256 feet above the ground on the way up and on the way down. The 256 फिट जो पोजीशन है ये 2 बार क्रॉस करेगा, एक ऊपर जाते हुए एक फिर वापस आते हैं, बिकॉज रॉक ऐसा नहीं कि ऊपर चला गया फिर चला गया, वो वापस आएगा. ठीक है, तो जब हाइट 256 फीट हो उस वक्त उसकी वेलोसिटी और स्पीड क्या होगी, राइट? तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो s का फार्मूला है, s इज इक्वल टू 160t minus 16t square, equate that to 256, put s equal to 256 here and then find the value of t, और फिर वो t की वैल्यू यहाँ पर वेलोसिटी में पुट करेंगे तो आपके पास वेलोसिटीज आ जाएंगे. इफ यू डू दैट, यू सी s of t is given as 160t minus 16t square and equate that to 256, whatever the value is. ठीक है, अगर 200 है तो 200 पे करो. आगे फिर क्वेश्चन आ रहा है, उसमें कह रहे हैं कि कितने टाइम में वो हाफ हाइट तक पहुंचेगा. तो अगर मैक्सिमम हाइट 400 है तो हाफ हाइट 200 होगा, तो आप यहाँ पे 200 पुट करेंगे, व्हाटएवर डिपेंड करता है जो भी आपको दिया हुआ है. तो 160t minus 16t square is equal to 256. It's a quadratic equation. You solve it for t. We are getting two values of t. दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं. तो इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पर से रॉक 2 बार गुजरेगा. अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो हम कहते हैं भाई जो नेगेटिव है इसको ड्रॉप करो, बिकॉज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव. लेकिन यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों आपने कंसिडर करने, बिकॉज इस पॉइंट पर या इस पोजीशन पर ये जो बॉडी है ये 2 बार क्रॉस करेगा. तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 8 सेकेंड. तो 2 सेकेंड में अगर आप देखें वेलोसिटी 96 फीट पर सेकंड आ जाता है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है. वापस में
जब t को 8 पुट करेंगे तो ये वापसी पॉइंट है और वहां से भी -96 फीट पर सेकंड आता है. The velocity is 96 feet per second and -96 feet per second accordingly at time t equal to 2 and 8 seconds respectively, while speed in both cases will be 96 feet per second. In part C, what is the acceleration of the rock at any time? Mean to say find double derivative. So that is -32. And when does the rock hit the ground again? जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इसका मतलब ये है कि s क्या हो जाएगा, उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो s को 0 पुट करें और t की वैल्यू फाइंड करें. तो t की दो वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं, एक 0 आ रहा है और एक हमारे पास 10 आ रहा है. तो इसका मतलब यह है कि एक 0 मतलब इनिशियली वो ग्राउंड पे पड़ा हुआ था और फिर 10 सेकंड्स के बाद वो दोबारा ग्राउंड को हिट कर रहा है. तो जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो वो 10 सेकंड में होगा. ओके, एक्सरसाइज 3.4, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक वो कह रहे हैं कि s इज इक्वल टू f ऑफ t इज द बॉडीज पोजीशन एट एनी टाइम एंड दैट इज मूविंग इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन और लाइन समथिंग. In part A, it says find the body's displacement and average velocity for the given time interval. Find the body's speed and acceleration at the end points of the interval. And when, if ever, during the interval, does the body change direction? थोड़ा आपको मैकेनिक्स से पता होगा. चेंज डायरेक्शन का मतलब यह है कि जब वेलोसिटी वो चेंज कर देता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इफ अ बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड, ओके, इट्स वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव. इफ इट इज मूविंग बैकवर्ड, वेलोसिटी विल बी नेगेटिव. ठीक है. तो डायरेक्शन चेंज का मतलब यह है कि कौन सा टाइम ऐसा होगा जहां पर बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी. बिकॉज पॉजिटिव से नेगेटिव पे आने के लिए या नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाने के लिए 0 क्रॉस करेगा. तो जिस टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी वहां पे पॉसिबिलिटी है कि वो बॉडी क्या करे, अपनी डायरेक्शन को चेंज करे जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो ये हमने चेक करना है इसको. तो आई एम डूइंग वन क्वेश्चन if you want me to do for you. अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें आता है तो फिर ठीक है, फिर तो अच्छी बात है. पहले कर लेते हैं t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2. So s is given here. क्वेश्चन 1 में कर रहा हूँ. t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 where the time interval is 0 to 2. In part A, it says what is the displacement. So delta S is what? That is final position minus initial position. That's the displacement, right? So if put t equal to 2 here, 4 minus 6 plus 2. Minus t 0 put करेंगे तो 0 minus 0 plus 2. That give you minus 2 meter. Then it say what is average velocity. So average velocity is what? That is delta S by delta t. So delta S is found, which is minus 2, and time interval is from 0 to 2 seconds. So delta t is also 2. That gives you minus 1 meter per second. That's the average velocity. In part B, it says that what is the velocity and acceleration at the end points. So velocity, which is instantaneous velocity, obviously, it is ds by dt. So ds by dt, that is 2t minus 3. अब मैंने एंड पॉइंट्स पे फाइंड कर रहे हैं तो when t equal to 0
velocity is what? That is v of 0, which is equal to minus 3 meter per second. And from here we can find speed. Speed will be 3 meter because you take absolute of it. Is it individual problem या सबको आवाज नहीं आ रही? सर ये इसका इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्रॉब्लम है. यस लघु खोजेगा राव खोजेगा हाँ डायबिटिक शी नेटवर्क मसला बड़ी. Okay, so speed is what? That is 3. Velocity at t equal to 0 is minus 3. And then we find the same thing at the other end. अब इसमें हमसे ये कहा गया है, ज़रूरी नहीं कि हम फाइंड करें. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई आप एंड टाइम पे क्या कर लें, इसकी वेलोसिटी वगैरह फाइंड कर लें. तो at time t equal to 2, v of 2, that is obviously you see that 4 minus 3 is equal to 1 meter per second, and then speed will be what? It is also 1 because positive, तो ये 1 ही होगा. And then we find acceleration, which is dv by dt or d square s by dt square. That will be 2 meter per second square, which is constant, implies at both endpoints a of 0, n times a of 0, a of 2, that is equal to 2. Okay, and at part C you will find that time at which body is changing its direction. So we know that मैं direction सिर्फ draw कर रहा हूँ. That is symbol I'm using for moving forward. So when moving forward, that means velocity will be positive, and for moving backward, that means velocity should be negative. Now you see that at the initial time velocity was negative, and at the final time velocity was positive. It means there is a time at which the body is changing its direction. और वो क्या है? How do you find it? We find a time at which velocity is 0. अच्छा, अब ये मतलब जनरल रूल नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी वहाँ पे वो लाजमा डायरेक्शन चेंज करेगा. राइट? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी मोशन, वो कैसे मूव कर रहा है. देयर इज पॉसिबिलिटी कि बॉडी ऐसे मूव कर रहे है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टिल हो गया फिर वापस वही मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 हो गई है लेकिन बॉडी ने डायरेक्शन चेंज नहीं किया. या अगर किसी पॉइंट पे बॉडी डायरेक्शन चेंज करेगा तो वहाँ पे लाजमी वेलोसिटी 0 होगी, ये भी ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेट्स सपोज बॉडी ऐसे मूव करे और फिर उसने शार्प टर्न लिया. अब शार्प टर्न में क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं होती, यहाँ पे वेलोसिटी फिर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही. जब स्मूथ टर्न करेगा, ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे टर्न कर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी फिर 0 हो जाती है इसकी, और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है. जबकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, इन्फिनिटी है, या हम इसको कहते हैं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही. ये बात हम बाद में डिस्कस करने जा रहे हैं जब हम एक्सट्रीम वैल्यूज की बात करेंगे. ठीक है, ये उस वक्त जब बॉडी शार्प टर्न लेता है. ठीक है, तो डायरेक्शन जो है वो स्मूथ टर्न से भी चेंज होता है और शार्प टर्न से भी चेंज होता है. तो वेलोसिटी 0 मीन्स 2t minus 3 is 0. And that give you t is equal to 3 by 2. इसका मतलब है after 1.5 seconds the body will change its direction. Initially it was moving backward, but because initial velocity is negative, so initially the body is moving backward, and then after 1.5 second it start moving forward. मतलब जो इसका इनिशियल पॉइंट है वहां से वो दूर की तरफ जा रहा है या उसकी तरफ जा रहा है, वही हम
डायरेक्शन की बात करते हैं उसकी। Is it clear? एक्सक्यूज मी सर। Yeah. सर अगर गिवन टाइम इंटरवल में सर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही सर, फर्स्ट बी पॉजिटिव है और फिर बाद में बी पॉजिटिव है सर, तो वहाँ पे तो फिर फाइंड नहीं कर सकते ना चेंज इन डायरेक्शन। वहाँ पे आप कहेंगे द बॉडी इज नॉट चेंजिंग डायरेक्शन, उस इंटरवल में उसकी डेरिवेटिव जीरो नहीं होगी ना, ना ओके जीरो होगी और ना इन्फिनिटी होगी। ओके सर। मतलब अगर इस इंटरवल में किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो है या इन्फिनिटी है और एंड पॉइंट्स पे या दो टाइम पे आपको पता चल रहा है कि वो डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ठीक है। बाज़ अगर मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि वो एक पॉइंट पे इस तरह कर ले, जैसे टी क्यूब है, अगर बॉडी इस तरह मूव कर रहा है एस इज इक्वल टू टी क्यूब, ठीक है। अब असल में इसमें तो हम टाइम नेगेटिव नहीं ले सकते, या ऐसा करते हैं टी माइनस वन क्यूब कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू टी माइनस वन क्यूब लेट्स सपोज, ठीक है। और इंटरवल हमने वही ले लिया कि जीरो से लेकर मे बी जो भी है जीरो से लेकर 4 तक या समथिंग। अब इसकी डेरिवेटिव कहाँ पे जीरो हो रही है, जब हम इसके डेरिवेटिव लेंगे यानी वेलोसिटी जब हम लेंगे इसका, तो वेलोसिटी जो है दैट इज 3t माइनस वन स्क्वायर, यू नो दैट। अब ये इसकी वेलोसिटी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी नेगेटिव हो सकता है, स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इट इज नेवर नेगेटिव बट इट्स वेलोसिटी इज जीरो एट t इक्वल टू 1। तो यहां से आप गेस करें कि भाई ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है एक पॉइंट पे, तो ये बॉडी जो है ये हमेशा के लिए मूव फॉरवर्ड होगी, इट विल नेवर मूव बैकवर्ड, इवन दो डेरिवेटिव इसका वेलोसिटी इसका जीरो हो रहा है एक पॉइंट। वही मैंने बताया कि एक खास टाइम पे उसकी डेरिवेटिव क्या हो जाती है, अगर हम t माइनस वन क्यूब के ग्राफ को देखेंगे तो वह ऐसे आएगा, यूं आएगा और यहाँ पे थोड़ा सा स्टिल हो जाएगा फिर नीचे जाएगा ऐसे, तो ये मूव कर रहा है इसी ऊपर की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो ये अपनी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं कर रहा, लेकिन उसकी एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिख लिया ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व भी करनी, वो बाद में बात करेंगे जब एक्सट्रीम वैल्यूज की बात करते हैं इसमें, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये आप नहीं कह सकते कि भाई जब वेलोसिटी जीरो है तो वो लाजमान डायरेक्शन चेंज करेगा। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने एक जगह गाड़ी रोक दी है कुछ टाइम के लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, और फिर सीधा चलने लगे, ठीक है, तो एक ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड ये कि आप 1 सेकंड के लिए रुके, आपने टर्न ले लिया तो उसमें आपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, या आपने शार्प टर्न ले लिया, अब शार्प टर्न में डायरेक्शन चेंज तो हो गया लेकिन डेरिवेटिव जीरो नहीं है, डेरिवेटिव इन्फिनिटी है। अगर किसी पॉइंट पे कॉर्नर है तो वहां पे फिर यही मसला होगा आपको, वगैरह वगैरह। ओके सर। Right. The next question is again very simple. It says that question number 7. बाकी आप कर लेंगे 2, 3, 4, 5 आप कर लेंगे 6 तक. At a time t, position of a body moving along the s-axis is given by t cube minus 6t square plus 9t. Part A is saying what is the body's acceleration each time velocity is 0. Part B says what is the velocity body speed each time acceleration is 0. And part C is what is the total distance traveled by the body from t equal to 0 to t equal to 2 seconds. ओके तो पहले हम s ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। s is given as t cube minus 6t squared plus 9t। अब पार्ट ए बी में कह रहे हैं कि वेलोसिटी फाइंड करो, स्पीड फाइंड करो, एक्सेलरेशन जीरो हो, दूसरे में कह रहे हैं वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन फाइंड करो। तो पहले हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों फाइंड करने होंगे। वेलोसिटी इन दिस केस इज सिंपल ds by dt which is 3t square minus 12t plus 9, where acceleration is 6t minus 12। तो पार्ट ए में कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो मीन्स 3t स्क्वायर
minus 12t plus 9 is equal to 0 implies that t is either 1 or 3. और फिर इन्हीं टाइम पे हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो a of 1 क्या होगा? That is 6 minus 12 is equal to minus 6 meter per second square. And a of 3 क्या होगा? That is 18 minus 12 which is plus 6 meter per second square. यूनिट्स आप खुद लगाएं यहाँ पे. पार्ट बी में कह रहे हैं कि when acceleration is 0 find velocity. Acceleration is 0 implies 6t minus 12 is 0. Which implies t is equal to 2. And at t equal to 2, what will be the velocity? V of 2, that is 3 into 2 squared minus 12 into 2 plus 9. That's the velocity. But they are asking about speed. तो speed means इसका absolute ले लो जो कि 3 के बराबर आ जाएगा. वेलोसिटी -3 है लेकिन ये 3 के बराबर आ जाएगा. फिर पार्ट सी में कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. अब यहाँ पे देखें 0 से लेकर 2 सेकंड्स तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है फ्रॉम 0 to 2 सेकंड. अगर बॉडी जो है इफ दैट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो यू नो दैट इन दैट केस distance travel is simply the magnitude of displacement, right? But if a body is moving along a curve like that, in this case this is moving forward, then change direction, moving backward, and then change direction, moving forward, something like that, other way around. ठीक है. अगर ये टाइम 1 सेकंड पे है, 0 सेकंड पे है, यहाँ पे बॉडी है. अब देखिए 1 सेकंड पे, यू सी 1 सेकंड पे इसकी डेरिवेटिव 0 है, तो 1 सेकंड्स के बाद वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. तो हम क्या करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट अलग से फाइंड करेंगे और फिर इसके बाद 2 सेकंड यहाँ पे कहीं पे होगा और फिर यहाँ से हम ये डिस्प्लेसमेंट अलग से फाइंड करेंगे और फिर इन दोनों को मतलब यहाँ से अलग से डिस्टेंस, इधर से अलग से डिस्टेंस करेंगे. तो क्या करना है यहाँ पर आपने, अब डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे. डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. लेकिन जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो जहां पे डायरेक्शन चेंज होगी तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, s ऑफ 1 यहां पर माइनस s ऑफ 0. लेकिन इसका एब्सोल्यूट लेना है, कीपिंग इन माइंड. बस अगर ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो आपने इसको डिस्टेंस बनाना है और फिर इसके बाद प्लस s ऑफ 2 माइनस s ऑफ 1. इसको भी मैं भी इससे लिख लूं. राइट, सो डिस्टेंस हमारे पास ये आ जाएगा. इसका भी यहाँ पे एब्सोल्यूट लेना है आपने, बिकॉज फिर इनको आपने ऐड करना है. अच्छा, अगर आपसे ये पूछा होता कि 2 के बजाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड्स, तो 0 से 4 सेकेंड्स अगर आप देख लें तो उस केस में द बॉडी इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन 2 टाइम्स. यू सी 1 पे भी चेंज कर रहे हैं, फिर 3 पे भी चेंज कर रहा है. तब आपने क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल अब वही करेंगे इस केस में. फिर आप s ऑफ 1 माइनस s ऑफ 0, मतलब यहां से लेकर यहां तक आप फाइंड करो, फिर यहां से लेकर यहां तक फाइंड करो और फिर यहां से लेकर 4 सेकंड तक फाइंड करो. तो s ऑफ 1 माइनस s ऑफ 0 अलग से एब्सोल्यूट लेना है बिकॉज डिस्टेंस बनाएंगे इसको. फिर सेकंड पार्ट में s3 माइनस s1 करोगे.
और फिर इसके बाद आपने करना है S4 माइनस S3। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि जहां पे वेलोसिटी जीरो है तो उसके बाद डायरेक्शन भी चेंज होगा, चाहे हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं चलता कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसलिए हम हर एक पॉइंट पर अलग अलग स्प्लिटिंग कर रहे हैं। इज इट क्लियर? Okay. In next question, it says that question number 8, sorry. At time t greater than or equal to 0, the velocity of a body moving along the horizontal s-axis is this one. Velocity given है. What is the body's acceleration each time velocity is 0? तो ये आप कर सकते हैं, velocity कुछ के बराबर ले लें. Part B में कह रहे हैं when is the body moving forward and backward, and when is the body's velocity increasing or decreasing? तो वो मैंने बता दिया आपको, velocity में given है. नंबर 8 क्वेश्चन है, जो भी है पता नहीं. Now velocity is given, it is t square minus 4t plus 3. ये velocity given है. अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट तो आसान है, वेलोसिटी को 0 के बराबर पुट करें और यहां से एक्सेलरेशन फाइंड करें पहले. तो a इज इक्वल टू, यू नो दैट इज 2t माइनस 4. ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी को 0 ले लें, t की वैल्यू आ जाएगी और फिर इसके बाद वो t की वैल्यूज यहां पुट करें, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा. पार्ट बी में कह रहे हैं व्हेन इज बॉडी मूविंग फॉरवर्ड. एज आई सेड, मूविंग फॉरवर्ड के लिए वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन 0, और मूविंग बैकवर्ड के लिए आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर दैट वेलोसिटी शुड बी नेगेटिव. तो अगर हम मूविंग फॉरवर्ड को फाइंड करें तो बाकी जो टाइम रह जाएगा वो ऑटोमेटिकली मूविंग बैकवर्ड होगा, या अगर हम मूविंग बैकवर्ड को फाइंड कर सके टाइम, तो बाकी जो रहेगा वहां पे मूविंग फॉरवर्ड होगा. तो आप दोनों में से कोई एक इनइक्वालिटी सॉल्व करें, जो भी आप करना चाहें. तो v इज ग्रेटर देन 0, हम इसको कर लेते हैं. व्हेन बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज t स्क्वायर minus 4t plus 3 is greater than 0, which could be written as t square minus 4t plus 4 is greater than 1. Adding 1 to both sides, I'm completing a square, okay? So that is t minus 2 whole square is greater than 1. अब आपको एक कंडीशन वो याद होगी फर्स्ट चैप्टर से कि अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो फिर क्या होता है. देन वी राइट t minus 2 will be less than minus 1 or t minus 2 will be greater than 1. ये रूल हमने पढ़ा था कि अगर x स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन a स्क्वायर है, तो x विल बी लेस देन माइनस a और x इज ग्रेटर देन a. और अगर x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर है, देन x विल बी बिटवीन माइनस a एंड a. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x इज t इज लेस देन 1 और t इज ग्रेटर देन 3. इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक सेकंड के अंदर बॉडी जो है वो मूविंग फॉरवर्ड, और फिर 3 सेकंड्स के बाद अगेन इट स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, और बीच में जो टाइम आ गया 1 से लेकर 3 तक, यहां पे बॉडी क्या है, इट इज मूविंग बैकवर्ड. इन दिस इंटरवल द बॉडी इज मूविंग बैकवर्ड. ठीक है, तो फर्स्ट 1 सेकंड में बॉडी इज मूविंग बैकवर्ड फॉरवर्ड, फिर t इक्वल टू 1 पे डायरेक्शन को चेंज करके इट मूव्स बैकवर्ड, फिर t इक्वल टू 3 पे दोबारा डायरेक्शन चेंज करके स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, आगे फिर फॉरवर्ड ही मूव कर रहा है. और पार्ट सी में कह रहे हैं कि व्हेन इज वेलोसिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ये सिंबल मैं आगे भी यूज करूंगा, ये इंक्रीजिंग के लिए होता है. यू नो दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इसलिए हम ये एरो यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा. ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट के लिए अगर हम ले लेंगे एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0, विच इज ऑलरेडी फाउंड,
2t minus 4 is greater than 0, ये 2t है, which means t is greater than 2, यानी पहले 2 सेकंड में द बॉडी वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग, उसके बाद फिर 2 सेकंड्स के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। तो एक पार्ट हमने फाइंड किया, दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा, बिकॉज फॉर t ग्रेटर देन 2 एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एंड देन फॉर t लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 0, बिकॉज नेगेटिव में तो नहीं जा सकते, इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी। ओके, अब बाकी जो क्वेश्चन है आई होप आप खुद कर सकेंगे, आसान है। Question number 9 is saying position of a particle on Mars and Jupiter are given by s equal to 1.86 t square and s equal to 11.44 t square respectively. Then say how long will it take on both क्या है इसको surfaces such that velocity approaches to 27.8, कितना टाइम लगेगा कि वो वेलोसिटी 27.8 तक अप्रोच कर रहे हैं। तो क्या करें, दोनों में वेलोसिटी फाइंड करके 27.8 के बराबर पुट करके t की वैल्यू फाइंड करें, और वेलोसिटी कैसे फाइंड होगी, ds/dt। तो यू कैन डू दैट, ds/dt दोनों केस में करके 27.8 के बराबर ले लें और t की वैल्यू फाइंड करें। इन क्वेश्चन 10 से सेम बिल्कुल जो एग्जांपल की तरह आप खुद कर लें इसको, जो एग्जांपल मैंने कर दिया, अ रॉक थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, s यहाँ पर 24t minus 0.8 t स्क्वायर है, फाइंड द रॉक वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, सिंपल ds/dt एंड dv/dt फाइंड कर लें। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू द रॉक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी को 0 के बराबर पुट करके t की वैल्यू फाइंड करें। हाउ हाई डज द रॉक गो, जो t की वैल्यू आ गई वो s में पुट करें, वही हमने किया हुआ था वहां पे। एंड देन से हाउ लॉन्ग डज इट टेक द रॉक टू रीच हाफ इट्स मैक्सिमम हाइट, वहां पे हमने 256 लिया था, यहाँ पर हाफ करना है, जो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी उसको 2 से डिवाइड कर लें। एंड देन इट से हाउ लॉन्ग इज द रॉक एलॉफ्ट, हाउ लॉन्ग इज द रॉक एलॉफ्ट का मतलब वही है कि वो कितने टाइम के बाद दोबारा ग्राउंड को हिट करेगा, या हम ये कह सकते हैं कि जितने टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है उसका डबल ले लें, तो उतने टाइम के लिए हवा में रहेगा। ठीक है, बाकी भी दो आसान है, 13, 11, 12, 13 जो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 15 में given that velocity and time graph is given, when does the body reverse direction, तो रिवर्स डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। ग्राफ से हमें कैसे पता चलता है कि वेलोसिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है तो वो नेगेटिव होगा। तो ये कौन से टाइम इंटरवल में ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, तो अगर आप देखें ये 2 से लेकर 7 तक जो है ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये बॉडी रिवर्स डायरेक्शन में होगी। एंड व्हेन इज द बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, कहाँ पे ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, तो जहाँ पे वेलोसिटी ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा वहाँ पे वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, और वो क्या है 3 से लेकर 6 तक है, जहाँ पे ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। आई होप यू सी दैट। देन इट से व्हाट इज द ग्राफ ऑफ बॉडीज स्पीड फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड्स, तो स्पीड में क्या होता है, जो नेगेटिव वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव कर लो। ये जो नीचे ग्राफ दिया हुआ है 2 से लेकर 7 तक, इसको आप रिफ्लेक्ट करो अबाउट एक्स एक्सिस और इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, हमें ग्राफ गिवन है, ऊपर जा रहा है ऐसे, फिर नीचे आ रहा है यहाँ से, फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहाँ पे हो जाता है, फिर इसके बाद ऊपर जा रहा है और फिर नीचे ऐसे आ रहा है। ये कॉर्नर है सारे, ठीक है, प्रॉपर नहीं हुआ, कॉर्नर है, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, सही। तो ये जो पार्ट है ये इट वाज समवेयर, कौन सा पॉइंट था पता नहीं यार, ये पॉइंट 1 है, 2 सर, ये 1 है, ये 2 है, ये जो पॉइंट है ये 3 है,
ये पॉइंट जो है ये 6 है, ये फिर 7 है, एंड सो ऑन अकॉर्डिंगली ये पॉइंट, और फिर यहाँ पे 10 तक हम जा रहे हैं। तो हमें ये ग्राफ एज इट इज ऊपर लेके जाना है, बिल्कुल सेम शेप रहेगा, सिर्फ यह है कि ये ऊपर की तरफ चला जाएगा ऐसे, यूं, ठीक है। ये अपने इसको छोड़ना है, तो ये स्पीड का ग्राफ हो जाएगा। ये नीचे नहीं आ रहा ना मेरे ख्याल में, या वो यहाँ पे 10 पे रुक जाती है, ये 10 है, ये नीचे नहीं जा रहा, यहाँ तक ही जा रहा है, ठीक है। तो ये स्पीड का ग्राफ हो गया। कैसे बन गया, यहाँ से यूं, लेट में चेंज आ रहा है, इसका शेप में कलर चेंज करो, तो यहाँ से ये एग्जैक्टली यही चीज़ होगा, ये जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर यहाँ से यूं आएगा, फिर ये आएगा। तो ये जो रेड मैंने बना दिया, ये क्या होगा, ये स्पीड का ग्राफ है। अब फिर कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन का ग्राफ फाइंड करो, तो मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिया है कि स्ट्रेट लाइन की डेरिवेटिव जो होती है वो उस लाइन का स्लोप होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये स्लोप हम फाइंड करेंगे। कंट्रोल Z। तो ये जो पॉइंट है ये तो 0 0 है, और यहाँ से ये हमें गिवन है ये 3 है, ठीक है। तो दिस पॉइंट विल बी 1 3 एंड दिस पॉइंट इज 0, ऑब्वियसली 0 0। तो इस लाइन सेगमेंट की 0 से लेकर 1 तक जो डेरिवेटिव होगी वो उसका स्लोप होगा, और वो स्लोप क्या है, 3 - 0 / 1 - 0 3 है। तो एक्सेलरेशन जो है उसकी वेलोसिटी है, तो हम यहाँ पे स्लोप्स ड्रॉ करेंगे इसके क्या हो रहा है, शायद मैं थक गया हूँ, हाथ अब सीधे काम नहीं कर रहे, सही काम। तो 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, इसका जो स्लोप है वो यहाँ से हम ड्रा करेंगे। ज़हन में रहे ये 3 पे रहेगा, और ये बोल्ड रहेगा। जो एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल होते हैं, एंड पॉइंट्स पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है अगर कंटिन्यूअस है तो, लेकिन यहां पर जहां पे कॉर्नर है वो आपने ओपन रखना है ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास इस इंटरवल में, फिर 1 से लेकर 3 तक अगर आप देख लें, यहां से लेकर यहां तक, ये पॉइंट तो 1 3 है। अगर आप इधर आ जाएं तो ये भी आपके पास -3 पॉइंट है यहां से यहां तक। तो दिस पॉइंट इज व्हाट, this point is the value of x is 3, y is -3। तो इस लाइन सेगमेंट का जो स्लोप होगा वो 3 - 3 6 हो जाएगा, और 1 - 3 -2, तो इसका स्लोप -3 होगा। तो जब यहाँ पर इसको ड्रा करेंगे तो ये -3 पे ड्रा करेंगे यहाँ से, लेकिन ध्यान में रहे होल से स्टार्ट लेंगे, और ये ग्राफ जाएगा कहाँ तक, ये ग्राफ जाएगा 3 तक। 3 पे भी ये होल ही होगा। फिर अगर आप देखें 3 से लेकर 6 तक ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका जो स्लोप होगा वो 0 होगा। तो यहां पे हम इसको ड्रा करेंगे अगेन होल, और यहां से लेकर 6 तक फिर ये होल रहेगा 6 पे भी, और फिर 6 से लेकर ये पॉइंट जो भी दिया हुआ है, पता नहीं 8 है कौन सा है, या 8 है, तो यहां से 8 तक आपके पास फिर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 3 है, इसका स्लोप फाइंड करेंगे फिर से, तो आ जाएगा y2 - y1 6 / 5 समथिंग, तो वो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। फिर नीचे आगा जाएगा 10 तक जाएंगे एंड सो ऑन। तो ये आपके पास क्या होगा, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा। तो अब सिंपल आपने फाइंड करना है इनके स्लोप्स, ये स्लोप फाइंड करो, ये स्लोप फाइंड करो, ये स्लोप फाइंड करो एंड सो ऑन। यही चीज फिर अगले सवाल में भी है, उसमें आपको पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा और टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो इसमें जहां पे ग्राफ मूविंग अपवर्ड है तो वो इंक्रीजिंग होता है, इसका मतलब है वेलोसिटी पॉजिटिव है। जहां पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वहां पे वेलोसिटी 0 है, द बॉडी इज स्टेइंग स्टिल। जहां पे डाउनवर्ड इसका ग्राफ है वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी इज नेगेटिव, इट मीन द बॉडी इज मूविंग बैकवर्ड।
और फिर इसके बाद वेलोसिटी का ग्राफ अकॉर्डिंगली आपने स्लोप फाइंड करके, जिससे मैंने एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रा किया था। तो आई होप यू कैन डू दैट। तो इसमें पार्ट फर्स्ट में यही कह रहे हैं कि व्हेन इज प्री मूविंग इन टू द लेफ्ट, मूविंग टू द राइट एंड स्टैंडिंग स्टिल। यहाँ से 0 से लेकर 1 तक द ग्राफ इज गोइंग इंक्रीजिंग, तो ये मूविंग फॉरवर्ड है। 2 से लेकर 3 तक डिक्रीजिंग, 5 से लेकर 6 तक डिक्रीजिंग, तो इन दो इंटरवल्स में मूविंग बैकवर्ड है। और 1 से लेकर 2 तक और फिर इसके बाद 3 से लेकर 5 तक इट इज स्टैंडिंग स्टिल बिकॉज इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पर वेलोसिटी इसका 0 होगा, तो बॉडी विल बी मूविंग स्टैंडिंग स्टिल, द बॉडी विल बी स्टैंडिंग स्टिल, सॉरी। और फिर इसके बाद कह रहे हैं वेलोसिटी का ग्राफ ड्रा करें, ठीक है। तो वेलोसिटी का ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ स्लोप फाइंड करो, ये स्लोप 0 है, ये स्लोप फाइंड करो, ये स्लोप 0 है, ये स्लोप फाइंड करो, और उसके मुताबिक लाइन ड्रा करो। जहाँ पे कॉर्नर्स है वहाँ पे होल छोड़ना है, बाकी आपने करना है। ये क्वेश्चन आप खुद देख लें, आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये मैंने ऑलरेडी आपको कहा हुआ था पहले लास्ट लेक्चर में कि ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करना है, चेन रूल कैसे करना है, और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कैसे होगी। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि क्या करेंगे आप। ओके, सो दैट्स वन लेक्चर फिनिश, जो पिछले वीक का ही था। लेट मी टेक अटेंडेंस अगेन, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स अभी आए हुए हैं शायद। क्योंकि बस स्टूडेंट की सुबह जो होती है ना वो 1 बजे या 12 बजे होती है। राइट। सर ये क्लासेस अगर शाम को होती तो हम दिन को आराम और सुकून से सो जाते। हाँ, ये अच्छी बात है, दिन सोने के लिए होता है और रात को बंदे को काम करना चाहिए ना। हाँ, ऐसी बात है ना। सर सर सुबह बस में हम आदी उठने, हो गए छुट्टियों में हमारा आदत खराब हो गई है सर यूनिवर्सिटी वाले से। आपकी आदत पहले कब ठीक थी? 8:30 बजे क्लास थी और आप 9:30 बजे आते थे रोज। ओके जी। नो सर क्लास सर असाइनमेंट के बारे में सर पूछना था सर। जी। सर उसका क्या करें सर, पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके सबमिट करें और कैसे सबमिट करें? और दूसरी बात सर ये कि बाज़ लड़कों ने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है और आपने जैसे बताया था 4 हिस्सों में पेज को डिवाइड करें और फिर ग्राफ बनाए और सिर्फ क्वेश्चन लिखे, हमने सिर्फ वैसे किया है सर, तो इसके मार्क्स तो नहीं कटेंगे सर? नहीं नहीं, ठीक है, ग्राफ ड्रा करना है उसमें, शिफ्टिंग करने से ग्राफ के साथ आपने फंक्शन लिखना है, वो ज़रूरी है। वो यस सर। पॉइंट लिखना है उसमें कि कौन से पॉइंट पे शिफ्टिंग हुई है, ग्राफ का फार्मूला क्या दिया हुआ है, शिफ्ट ग्राफ का फार्मूला क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल कौन सा ग्राफ है, वो सारे मेंशन करने हैं। और वो ऑनलाइन से ही आपने सबमिट करना है। सर क्लासरूम में वहाँ पर कर देंगे सर? क्लासरूम में वहाँ पे जाएं जहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया हुआ है। लेट्स यस सर। सपोज यहाँ पर है, तो आपको अभी मैंने इस पर डेडलाइन नहीं दिया, मेरा ख्याल था मैं आपको डेडलाइन दूंगा, तो पता नहीं मैंने क्यों नहीं दिया। और पीडीएफ फॉर्म में सर कन्वर्ट करें या नहीं सर? पीडीएफ हो, वर्ड फाइल हो, जैसे आप पिक्चर ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू। लेट मी चेक द असाइनमेंट। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपके सामने उसमें, अभी मैं इसको डेडलाइन दे दूँ, 2 दिन में करना है आप लोगों ने। असाइनमेंट कहाँ पे है? यहाँ पे असाइनमेंट है, तो इसको मैं पोस्ट करूँ, एडिट। इसमें से 8 स्टूडेंट ने मुझे वापस किया हुआ है, बाकी अभी 25 स्टूडेंट नहीं किया हुआ। इसमें मैं ड्यू डेट दे दूँ ताकि आप फिर इसके बाद ना कर सकें। तो ड्यू डेट आपने कल तक ये सबमिट करना है। चलो 14 तक कर लेते हैं, संडे तक। जब आप अपने उस पर जाओगे ना, वहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा, वहाँ से फिर आप उसको अपलोड कर लोगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे ग्रेड में जाऊँगा तो जिन्होंने वो साइन इन किया हुआ है, देखिए यहाँ पर जिन्होंने किया हुआ है वो उनका यहाँ पे मौजूद होगा, यहाँ पर जिन्होंने नहीं किया वो अभी तक नहीं होगा। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो उसका यहाँ पर आ जाएगा कि उसने ये
असाइनमेंट यहाँ पे देखें, उसका यहाँ पे है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अहमद हुसैन ने इसको साइन सबमिट किया हुआ है, तो इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो उसका असाइनमेंट ऑटोमेटिकली मेरे सामने ओपन होगा और यहीं पे मैं इसको मार्क करूँगा फिर। ठीक है, यही तरीका है इसका। ओके, किसी ने सवाल पूछा या क्या हुआ? अटेंडेंस बस हो गई है ना? दोबारा मैंने कर ली थी ना, इसको क्लिक किया था मैंने। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसका फर्स्ट पार्ट आसान है, वो हम कर लेते हैं अभी, जल्दी जल्दी हो जाएगा 5-10 मिनट में, तो ख़त्म कर लेंगे। बाकी फिर जो सेकंड पार्ट है वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। इसमें हम मेनली फोकस करेंगे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो वी कंसिडर, और उसके बाद फिर इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह। हम दो तरह के एक्सट्रीम वैल्यू डिस्कस करते हैं, एक एब्सोल्यूट होता है और एक रिलेटिव होते हैं। ठीक है, तो पहले हम एब्सोल्यूट की बात कर लेते हैं। एब्सोल्यूट फिर दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास एब्सोल्यूट इन एन इंटरवल और एक होता है एब्सोल्यूट इन द होल डोमेन। तो यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज इन एन इंटरवल। ठीक है, दोबारा एक्सट्रीम वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक एब्सोल्यूट एक्सट्रीम होते हैं, एक रिलेटिव एक्सट्रीम होते हैं, या एक ग्लोबल एक्सट्रीम होते हैं, एक लोकल एक्सट्रीम होते हैं। फिर एब्सोल्यूट एक्सट्रीम में हम दो तरह के डिस्कस कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एक्सट्रीम इन एन इंटरवल और एब्सोल्यूट एक्सट्रीम इन द होल डोमेन। इन इंटरवल जो ऑलरेडी आप एफएससी में कर चुके हैं, वो यहाँ पे सिर्फ रिकेप है उसका। इंटरवल में होल डोमेन में क्या होगा वो थोड़ा सा ट्रिकी है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन गिवन है, दैट इज अ फंक्शन हैज is said to have absolute maximum in its domain if the value is the largest in the whole domain। जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा हो वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, और जिस पॉइंट पे सबसे कम हो वही एब्सोल्यूट मिनिमम है। ठीक है, सबसे कम पूरे डोमेन में। अब यहां पर अगर आप देखें, ये रेड ग्राफ जो है y = cos x का है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू इस डोमेन में है वो 0 पे है और वो 1 है। उसकी मिनिमम वैल्यू -π/2 पे 0 है। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम। जबकि दूसरा ग्राफ जो ब्लू ग्राफ है वो y = sin x का है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे है जो कि 1 है, मिनिमम वैल्यू -π/2 पे -1 है। कुछ फर्दर एग्जांपल है, y = x²। अगर हम पूरा उसका डोमेन ले लें तो पूरे डोमेन में इसकी कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं है, बिकॉज इसकी सी दैट ये ग्राफ जो इसका अगर आप नजर आ रहा है ये जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ दोनों साइड पे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी पे होगी। तो जब कभी भी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी आती है इसका मतलब यह है कि उसका मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है। मिनिमम वैल्यू इसकी 0 पे है, बिकॉज 0 से कम कोई नंबर उसका नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम इज 0 व्हाइल नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। लेकिन जब हम क्लोज इंटरवल की बात कर लेते हैं, इसमें अब डोमेन की बात नहीं कर रहे हैं, इंटरवल की बात कर रहे हैं। सेकंड ग्राफ पार्ट बी में जो बोल्ड पार्ट है ये यहां से लेकर यहां तक, तो 0 से लेकर 2 तक ये क्लोज इंटरवल है। तो इसमें मिनिमम वैल्यू 0 पे है, जबकि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 पे है, वो 4 के बराबर है। ये एब्सोल्यूट की बातें हो रही हैं सारी, लोकल अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर इसमें एक एंड ओपन हो जाए या फिर दोनों एंड ओपन हो जाए, तो यहां पर हम देखें ओपन आएगा तो इसका मतलब यहां पर होल आ जाएगा। अब इसमें इट लुक्स लाइक कि उसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 0 पे है, लेकिन 0 पे यह डिफाइंड ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। यू वुड से नो एब्सोल्यूट मिनिमम, व्हाइल एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज अगेन एट x = 2 जो कि 4 के बराबर है। व्हाइल इन द नेक्स्ट पार्ट डी दोनों एंड्स जो है वो ओपन है, मतलब हमें ओपन इंटरवल दिया हुआ है, तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमें ये आइडिया नहीं हो रहा कि 0 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा। ठीक है, व्हाट विल द नेक्स्ट नंबर आफ्टर 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं न मैक्सिमम है यहाँ पे न मिनिमम है, इस पर दोनों में नहीं है। ये बाद में डिस्कस करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे फंक्शन की डेरिवेटिव 0 हो या अनडिफाइंड हो। अनडिफाइंड में
डजंट एग्जिस्ट भी आता है। तो जिस पॉइंट पे हम ये कह रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो डायरेक्शन चेंज 0 पे भी हो सकता है और अनडिफाइंड पे भी हो सकता है। कोई सवाल पूछ रहा है या एम ही कुछ हो गया? अली रहमान कहाँ से अभी आ रहा है? अच्छा एग्जाम में रख लें, किसी और आईडी से आप आएंगे तो आई विल नॉट अलाउ यू टू कम इन, अपनी उससे आ जाएं। और जिन्होंने अभी तक इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया वो लाजमन एक्सेप्ट करें, अदरवाइज फिर नेक्स्ट मैं क्लास में नहीं छोड़ूंगा इस तरह, लिंक को यूज ना करें। ओके, तो अ पॉइंट एट विच फंक्शन डेरिवेटिव इज 0 और इन्फिनिटी और मे बी अनडिफाइंड डजंट एग्जिस्ट, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने का ये सिर्फ ये 3 स्टेप्स हैं। गिवन इंटरवल में ज़हन में रहे, यहाँ पर इंटरवल की बात हो रही है, इंटरवल से बाहर होल डोमेन में वो बाकी चीजें फिर बाद में डिस्कस करेंगे हम। सर काफी अभी हमारी दूसरी क्लास है सर। क्लास में भी टाइम है, 11:30 तक मेरी क्लास है, तो कैसे दूसरी क्लास है? सर हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक करेंगे सर, 11:30 पे दूसरा क्लास। सर तक गए सर, हम तक गए। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैंने खत्म करना है अभी, 1 2 3 चीजें हैं, 5 मिनट्स हैं। तो आप अगर 5 मिनट्स बातों में गुजार रहे हैं या काम करवाने दे रहे हैं मुझे? टाइम हो गया सर, टाइम तो पूरा है। 11:30 पे टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। ओके, तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो ब्रेक है ना, मैंने कल में ये खत्म करेंगे, डिस्कशन की फिर वो नहीं है ना। पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करें, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें क्रिटिकल पॉइंट पे और एंड पॉइंट्स पे, और फिर इनमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो मिनिमम होगी। ये आपने एफएससी में किया हुआ है, बहुत सिंपल होता है। क्या करें, पहले डेरिवेटिव चेक करो कहाँ पे 0 है या इन्फिनिटी है, इसके बाद या डजंट एग्जिस्ट है। इसके बाद फिर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो किस किस पॉइंट पे, एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, ठीक है, और जो क्रिटिकल पॉइंट उस इंटरवल के अंदर है उस पे, सारे इंटरवल सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे नहीं, जो उस इंटरवल में है, ठीक है। और फिर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट चूज करो। अगर क्लोज इंटरवल है, ध्यान में रहे, अगर इंटरवल ओपन है तो फिर थोड़ी सी कहानी डिफरेंट होती है। जो एंड ओपन है, जो कि अक्सर एंड ही ओपन होंगे, अगर उस पॉइंट पे मैक्सिमम है या मिनिमम है तो आप कहेंगे मैक्सिमम मिनिमम डजंट एग्जिस्ट। अगर ओपन इंटरवल पे आ रहा है मैक्सिमम या मिनिमम तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी कंसेप्ट बिल्कुल सेम ही है। एग्जांपल x² इंटरवल -2 to 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो 0 पे वैल्यू फाइंड करो, 1 पे वैल्यू फाइंड करो, -2 पे वैल्यू फाइंड करो, और फिर मैक्सिमम इसका 4 आ रहा है, मिनिमम 0 आ रहा है, दैट्स इट। सेकेंड एग्जांपल में फिर हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वो 2 क्यूब रूट आता है, जो कि 1 से ग्रेटर है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट इंटरवल के अंदर नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ एंड पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करेंगे, -2 पे और 1 पे, और उनमें मैक्सिमम मिनिमम ढूंढेंगे। एग्जांपल 4 में फिर हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रही है, सॉरी इन्फिनिटी हो रही है, तो डेरिवेटिव इज 2 डिवाइड बाई 3 क्यूब रूट ऑफ x, जो कि 0 होता है, 0 इन्फिनिटी होता है 0 पे, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है और इस इंटरवल में मौजूद है। तो एफ ऑफ 0 फाइंड करो, एफ ऑफ एंड पॉइंट्स पे फाइंड करो, और फिर मैक्सिमम और मिनिमम को पिक करो। ये चीज़ अपने एक्सरसाइज में करना है, ये आप देख लें। इफ यू गॉट एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी नेक्स्ट लेक्चर। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। वही आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, एंड पॉइंट पे वैल्यू देख लो और चेक करो मैक्सिमम कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है, ठीक है। एंड इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। एनी क्वेश्चन?